Hello students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, as you know, this is a very important chapter, consumer awareness, and that's why I had given you some important questions of consumer awareness in the previous video, and today I will also give you the another questions of consumer awareness. Children, I hope you are doing preparation for your annual examination very well. So let's see the question. Why are the consumers exploited? Explain the causes. Answer. The following 4 reasons are as follows: lack of knowledge, limited information, monopoly, consumers' difference towards the market. These are the important reasons from which the consumers exploited. So, first, lack of knowledge. The main reason for exploitation of consumers is lack of knowledge. Several consumers do not have the knowledge about the price, quality, services related to commodities. Therefore, they simply trust the facts told to them by the sellers and purchase goods, thus become trapped and are exploited. Second, limited information. In this age of globalization, the market is full of a variety of products. Producers are free to produce. There are no fixed laws for quality and fixation of prices. There is lack of proper and correct information regarding different aspects of goods such as price, quality, structure, terms of their use, laws of purchasing, etc. Therefore, the consumer selections become wrong and they have to bear economic loss. Third, monopoly. Monopoly means the right on the production and distribution of a commodity of a producer or a group of producers. In the state of monopoly, producers have arbitrary behavior regarding the prices and the quality and availability of the goods. As a result, they succeed in exploiting consumers. Fourth, consumers' indifference towards the market. There is a large group of such consumers who behave indifferently regarding purchasing. There are some consumers who think as what to do. Everything is alright, leave it. Why to take cash memo? Whatever good the shopkeeper gives is good. Things should be cheap, goods and durable. What is the need of the standardization marks like ISI and AG mark, etc.? The producers take full advantages of this indifferent behavior of consumers and succeed in exploiting them. तो children, consumers जो हैं कई प्रकार से एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं. कई कारण है उसके जिसकी वजह से वो उनका शोषण होता है. पहले तो नॉलेज की कमी उन्हें हो, फिर उसके बाद उनके पास इंफॉर्मेशन जो हो वो लिमिटेड हो, प्रोडक्ट्स की वैरायटी के बारे में उन्हें जानकारी कम हो या आधी अधूरी जानकारी हो. इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जैसे कि क्वालिटी, स्ट्रक्चर, टर्म, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें यदि आधी या लिमिटेड जानकारी हो तो भी उनका इकोनॉमिक लॉस होता है. फिर इसके बाद मोनोपोली. यदि कोई भी ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स का कोई भी ग्रुप है या फिर कोई भी एक व्यक्ति है, यदि उसका मार्केट में एकाधिकार होगा या किसी एक प्रोडक्शन के ऊपर होगा तो निश्चित रूप से वह लोगों को एक्सप्लॉइट कर पाएगा, कंज्यूमर को शोषण उनका कर पाएगा वो. इसके बाद है इंडिफरेंस. लोगों की सोच जो है वो अलग अलग होती है. कोई जो होते हैं उन्हें जो बिल होता है वो निश्चित रूप से लेना पसंद करते हैं या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि वो किस प्रकार का है. जो भी है मिल रहा है, ठीक है, चल जाएगा, इस टाइप से उनकी सोच होती है. वहीं वो जैसे चीप लेना पसंद करते हैं, भले ही जो प्रोडक्ट है वो ड्यूरेबल हो या ना हो. ये या फिर स्टैंडर्डाइजेशन जो मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं चीज़ों को, वो हो या ना हो, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है और ले लेते हैं. तो
ये जो चीज़ें हैं ये उनके ही एक्सप्लॉइटेशन का कारण बनती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को इन चीज़ों से एडवांटेज होता है और इस टाइप की जो सोच होती है उससे वो जो है प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स निश्चित किए गए हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और यदि जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं यदि इन सब चीज़ों के प्रति अवेयर हो गए तो निश्चित रूप से उनका शोषण रुक सकता है। चिल्ड्रन, इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अभी हमने स्टैंडर्डाइजेशन मार्क के बारे में देखा, तो उसका मीनिंग क्या है, एंड स्टेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या स्टैंडर्डाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वह भी बताना है। चिल्ड्रन, ये मैंने आपको क्लास में समझाया भी था, फिर से यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। Maintaining quality, grades, size and constituents of the products is called standardization. Standardization of products is an important measure taken by the government to protect the consumer from lack of quality and varying standard of goods. In India, these standards have been achieved through Bureau of Indian Standard, which is earlier known as the Indian Standard Institution, has the responsibility of laying down the standard for industrial and consumer goods on a scientific basis and certifying the goods that met the prescribed quality and standard. Government try to maintain the standard of things in a number of ways. Every producer is liable to be prosecuted. For certain articles, an ISI mark is a must to ensure its high quality and genuinity. As far as food items are concerned, it is essential to indicate its weight on each and every packet. The producers of medicines have to print the date of manufacturer as well as the date of expiry on the medicine. So children, देखिए गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करती है प्रोडक्ट का, इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को उतनी क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, उतना साइज़ यदि निश्चित किया गया है तो वो साइज़ जो भी उन्होंने उसमें ग्रेड्स दिए हुए हैं वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना होगा। और गवर्नमेंट के जितने भी उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए उसको फॉलो करते हुए जब कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो वह गवर्नमेंट की तरफ से अथराइज्ड हो जाता है और उस पर ISI मार्क या एग मार्क या इस तरह के जो मार्क्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से, ताकि वो जो ये प्रूफ करता है कि जो प्रोडक्ट है वह गवर्नमेंट में जितना भी जो स्टेप्स या स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उसको वो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो यह कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन, मेंटेनिंग क्वालिटी, ग्रेड्स, साइज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोडक्ट। चिल्ड्रन, गवर्नमेंट जो है हमारी, गवर्नमेंट का ये काम है कि वह हर तरफ से कंज्यूमर्स जो है, जनता जो है उसकी भलाई के काम करे, और यह भी उसी में से एक आता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर एक अलग से प्रावधान बना हुआ है, कंज्यूमर राइट्स बने हुए हैं और उनके तहत कोई भी कंज्यूमर जो है उनका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो सके। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो जो चीज़ों के जो मेंटेन करने की स्टैंडर्डाइजेशन जो चीज़ें हैं उनको वो मेंटेन कर पाए, और इसके लिए वो क्या करते हैं कि हर प्रोड्यूसर को ये बोला जाता है कि वह क्या करेगा, जितने भी उसको नियम है उन्हें फॉलो करना होगा। जो भी सर्टेन आर्टिकल है उसमें ISI मार्क लगवाना होगा उसे, मतलब जो क्वालिटी जो उन्होंने बताई गई है वो उन्हें इंश्योर करनी होगी कि उतनी क्वालिटी उस प्रोडक्ट में है। और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसमें वेट, उसकी साइज़, उसका क्वालिटी, उसकी प्राइस, ये सारी चीज़ें वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही फॉलो कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन, इस तरह से जो है हमने आज स्टैंडर्डाइजेशन और कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के रीज़न हैं उनको पढ़ा। तो ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास। और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन
Good day.